नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। विदेश मंत्री एस जयशंकर दौरे पर हैं और जर्मनी का दौरा पूरा करने के बाद से वो जिनेवा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिनेवा में भारतीय समुदाय के लोगों के कई मुद्दों पर बातचीत की है। When you go out in the world, what does the world look at? They look at your capabilities. If your capabilities are not strong, the best English doesn't compensate for it. And they look at confidence. And that confidence comes from capability. They look at, in a way, at your calculations. That judgment, the relationships you have, how you look at the world, how do you assess it, how do you calculate with whom you are, what is the quality of your relationship. These are actually factors on how foreign policy is decided. So for me, every brick and every mortar, every better equipped person in India, everybody with better health, better roof, better condition of life, and therefore a greater ability to contribute, is actually part of the cards I hold in my hand when I go out of India and deal with other countries. So for me, all that happens at home is actually the basis on which foreign policy is conducted. Now, as I said, it requires hard work. It doesn't happen in a day. We are struggling with some issues. There's a big debate in this country, in our country, about manufacturing. Now the fact is, there are people who would say, why are we importing so much from China? Part of it is because we neglected manufacturing through the 1960s, 70s, 80s and 90s. Maybe even the first decade of 2000. Think back, all of you are as connected and have as good a memory about our country as I do. When did we actually have governments who made a major push on manufacturing? And yet there are people who today come and say, no, we need to find a fix. As though it's something you can do instantaneously. In fact, and there are, by the way, people who actually also say that we are incapable of it. We should not even attempt it. So, now ask yourself, can you actually be a major power in the world without manufacturing? Because a major power needs technology. Nobody can develop technology without developing manufacturing. But yet, you have that strain of thought also. So, as I said, it requires, until we develop the human resources, it requires hard work. Until you build the infrastructure, until you have those policies. So life is not khatakhat. Life is hard work. Life is diligence. Anybody who's held a job and labored at it knows it. So that's my message to you, that we have to work hard at it. But I'm also conscious I'm in Geneva and I need to say a few things about what's happening here. And as Ambassador said, I've last day met a number of heads of international organizations. So I want to share a few thoughts about what happens in Geneva, how do we relate to it, what are the conversations, what are our interests. Thank you. So, now this could be a talk in itself. So I limited myself to 3 or 4 issues. So let me start with human rights. It's a very big subject in this city, rightly so. Human rights should be debated. After all, everything I have been talking to you is about human rights. But when it comes to human rights, India is actually a very unique society. And I'll tell you why. Because if you look at the history of the world,
with the exception of India, maybe somebody else, I'd be open to that suggestion. But I would say probably with the exception of India, every other society has put an enormous emphasis on uniformity. When people think of a country, they think of one language, they think of one faith, they think of one ethnicity. Homogeneity is supposed to be about nationhood. This is universal. Even countries who have a range of people, a range of languages, actually impose that larger uniformity construct on their entire society. I don't have to give you any names, just look at the map of the world, look at big countries and you get the answer. We are the only people who have not done it. And I think that's the first and most basic human right. We have allowed, encouraged, facilitated, accepted people with diversity to continue in that diversity. So, my point when I look at human rights is to try to politely and hopefully convincingly tell people, you know what, I'm actually in a much better starting point than any of you. Because you actually have suppressed or distorted or underplayed much of the diversities and divergences and pluralisms in your society. I have that. Now because I have that, I will also have the accompaniment. I would have the argumentation. I would have, the debates in my society. Others may have less, but they have less because actually they have suppressed it or they have eliminated it. When I have divergences, pluralism and diversity, the conversations in that society will necessarily be different from those societies which don't have and never value that kind of divergence. The second, of course, is that a lot of the conversations on human rights are built, I would say, these are, in a way you can say, post-predatory conversations, that after you've dealt with the whole world for centuries, now you can come back to Geneva and give lectures to other people. But it is something we need to look at, because I think it's important to get our narrative out, to have our message out. If we, are underconfident, or if we start actually running down our own country in public, we're not going to have those conversations. Because if you start running down your country in public, 192 other countries will join you in running down your country as well. And international relations diplomacy is competitive. So, I do feel that, look, we are a democracy. We are a 1.4 billion people plus. There will be flaws, there will be shortcomings, there will be mistakes. There will be things which, somebody can reasonably object to. That is part of our growth and part of our learning. But it should not become a kind of a tactic, a kind of gamesmanship to put India on the back foot. And that is what sometimes we see. So when it comes to human rights, where there is an honest conversation, we're always open to it. But when, you get down to these rankings and ratings and so on, those are not honest conversations. Those are mind games, which are actually played out for a political purpose. The second domain which I spent some time talking about was health. And again, we have tried really to expand our health coverage. We have this program called Ayushman Bharat. Now, in the years, it's not been. तो जिनेवा पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से वो मिले, कई मुद्दों पर बातचीत उनके साथ उन्होंने की। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का चौथा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसके मद्देनजर संस्थान की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
जिसको हमारी किसी परंपरा में संस्कृति कहा, बीच का वृक्ष बन जाना, यह संस्कृति है। बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना, यह है प्रकृति। लेकिन भारत की उसी परंपरा के अनुरूप यह आयुर्विज्ञान संस्थान एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बनकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह संस्थान की एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए पूरे संस्थान को इससे जुड़े हुए यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के प्रबंधन समिति प्रबंधन से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, इन सबको, जितने भी लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं या और भी जितने भी लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। यही जो जीवन की यात्रा, अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे, गलत करेंगे तो उसके कुछ परिणामों से हम स्वयं ही अपने आप को मदद नहीं कर सकते। संस्थान बना देना भर मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। किन हाथों में है और कैसे उसको संचालन होना है। अच्छे हाथों में होगा तो संस्थान चलेगा, बढ़ेगा, एक संस्कृति की तरह आगे बढ़कर के अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ का लाभ जनता जनार्दन को ही प्राप्त होगा। जैसे भागीदार न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उसके साथ भागीदार बन जाती है। लेकिन अगर संस्थान शासन में धनराशि की संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, उससे मिलने वाले अभिगत का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग, वह संस्था, अभी तो विभाग के साथ साथ शासन भी अभिगत के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा झलकती है, संस्थान या किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा जो सही दिशा में नहीं बढ़ती है, उसके माध्यम से जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उसके कारण उसके द्वारा उस समय जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है वही कांग्रेस है। और आज जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ी सिटी है। लगभग 70 लाख की आबादी अकेले लखनऊ में निवास करती है। और जब हम आरएलएल की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक गेट वे है, वहां की पूरी भीड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमोत्तर बिहार या नेपाल, यहां की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए लखनऊ पर निर्भर करती है, लखनऊ में आती है और लखनऊ में उनका सबसे पहले मुकाबला पड़ता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से। वे संस्थान में आते हैं और इस संस्थान से जो सुविधा उन्हें प्राप्त होती है उस प्रकार की उनकी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी हम सबको सुनने को मिलती है।
एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी। जब कोई उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है, दुनिया को कोई व्यक्ति मिलता है, कोई राजनीतिक मिलता है, और जब उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है तो वह स्वयं चौंक जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तो फिर पूछता है कि क्या यह 25 करोड़ की आबादी का है राज्य या 25 लाख का? हम कहते हैं 25 लाख के तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो नगर निकाय हैं उनकी आबादी 25 लाख है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो वे चौंकते हैं आबादी को। लेकिन जहां ये हमारे लिए एक चुनौती होती है, लेकिन वही साथ ही साथ हमारे सामने यह एक अवसर भी होता है अपने लिए तमाम प्रकार के कार्यों को सेवा के साथ साथ अपने तमाम प्रकार के रिसर्च एक्टिविटी को भी बताने, देखने और स्टडी करने का भी एक माध्यम यह बन सकता है। और मैं अक्सर देखता हूं, मैंने जब आपकी वार्षिक प्रतिवेदन को यहां पर संस्थान के डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उन्होंने संस्थान के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट यहां से प्रस्तुत की थी और इसके बारे में ब्यौरा भी दिया गया कि संस्थान यूजी, पीजी और फिर सुपर स्पेशलिटी के तमाम विभागों का संचालन आज सफलतापूर्वक कर रहा है। संस्थान एक छोटे से हॉस्पिटल से पढ़कर के आज 1300-1400 बेड का एक बड़े संस्थान के रूप में आज विकसित होकर के उस प्रकार की सुविधाएं दे रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में भी संस्थान आगे बढ़ चुका है, उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ये सभी चीजें वे अपने प्रतिवेदन के साथ यहां पे प्रस्तुत कर रहे थे, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रस्तुत कर रहे थे कि संस्थान ने और क्या कुछ किया है और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है। ये किसी भी संस्थान के द्वारा अपनी वार्षिक उसको स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रकार का प्रतिवेदन देना स्वाभाविक होता है कि हम अपने को आत्मनिर्भर स्वयं कर सके और भविष्य की कार्य योजना को भी उसके लिए तैयार कर सके, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और संस्थान ने उस कार्य योजना को यहां पर प्रस्तुत करके सारे सब बातों को यहां पर उल्लेख किया कि हमें क्या क्या कुछ हमारे पास है, और उसी में ये भी आया था कि हमारे कितने स्टडी पेपर हैं, कितने पब्लिकेशन हैं, कितने पेटेंट हमें प्राप्त हो गए। ये आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपके पास जो पेशेंट आता है और पेशेंट आपसे यहां पे लगभग 9 लाख पेशेंट ओपीडी में थे, 50,000 से भी ऐसे थे जिनको आईटीडी में आपके यहां पर इनको फैसिलिटी उपलब्ध करवा करके उनका उपचार करके सफलतापूर्वक उन्हें यहां से औपचारिक करके उन्हें यहां से उनके घर की तरफ प्रस्थान कराया। वार्षिक प्रतिवेदन के साथ आप लोग यानी लाखों की संख्या में लोगों को यहां पे उपचार का लाभ दे रहे हैं, और मुझे लगता है अगर उसके डाटा भी हरेक डॉक्टर के द्वारा तैयार करके सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा तैयार होकर के अगर उस पर भी स्टडी हो और फिर उसी स्टडी को आगे बढ़ा करके आप कार्य करेंगे तो मुझे उसका बड़ा लाभ इसके माध्यम से न केवल आपको बल्कि आने वाले पेशेंट को भी प्राप्त होने वाला। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम लोगों को स्वयं पे विश्वास नहीं होता, और अक्सर होता है कि हम लोग इन बातों से परेशान होते हैं कि आज दुनिया के अंदर क्या कुछ है।
तो लखनऊ पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ लोहिया संस्थान के स्थापना दिवस में शामिल हुए और यहां पर अपना संबोधन भी उन्होंने दिया। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नई दिल्ली में राजभाषा विभाग 14 से 15 सितंबर 2024 को चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसको लेकर के राजभाषा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 14-15 सितंबर को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर के राजभाषा विभाग पूरी तैयारियां कर रहा है। और बताया यह भी जा रहा है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और यहां पर वो संबोधन करने का काम भी करेंगे, यानी कि यहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित वो करेंगे। तो इसको लेकर ये खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन होगा। की समृद्धि सुनिश्चित करें, अर्थात हमारे जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, उनको ये पूरा एहसास था कि हमारा देश एक कॉम्पोजिट कल्चर का देश है। तो यहाँ पे हमें एक कॉम्पोजिट कल्चर को समृद्ध करने के लिए क्या क्या करना होगा, उस पर ध्यान देना है। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 आया, राजभाषा नियम 1976 आए। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1975 में बना और इस विभाग का दायित्व है सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना। हमारी 75 सालों की यात्रा बहुत लंबी रही है, परंतु पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने एक आमूलचूल परिवर्तन देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 5 प्रण का लक्ष्य दिया और उसमें 2 प्रमुख रहे हैं, हमारी अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी के चिन्हों से मुक्ति। इन्होंने हमारे मानो सोच को ही बदल दिया है। हम अपनी संस्कृति की महत्ता और विशेषता को जानना चाह रहे हैं, एक आम भारतवासी भी। और संस्कृति जहां है वहां भाषाई महत्ता अपने आप आ जाती है। संस्कृति और भाषा आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये प्रयास हो रहा है कि हिंदी और हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि सुनिश्चित की जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कहा था कि हिंदी और सभी भाषाएं आपस में सखियां हैं, इनमें कोई स्पर्धा भी नहीं है। तो आज हम इस वातावरण में आगे चल रहे हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।